Shruti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 3 of Stuti Speaks. And as everybody knows, this is a guest based season again. So I have a guest with me, a very special guest. His name is Aditya, and Aditya is working in aviation industry. He's working as a ground staff as of now, and also he knows very much about the industry itself. So I thought today ke एविएशन इंडस्ट्री ग्राउंड स्टाफ केबिन क्रू कुछ challenges discuss करते हैं and let me come back to how I know Aditya. So last year I was looking for people to podcast, and that's where I think we connected via my Stuti Speaks page, and we thought to talk about many things, but I think वो materialize हो नहीं पाया. So that's how I connected him again this time, and this time we thought to do it. So yeah, over to you, Aditya. In case I missed something in your intro, please go ahead and do it. Well, thank you so much. So my name is Aditya. Other than working with ground staff, so this is not actually my field. It is just for the sake कि अभी मेरे पास एक साल का गैप है. मुझे मुंबई में जाके पढ़ाई करनी है. तो मैं जिस कॉलेज में चाह रहा था वहाँ पे मेरा एडमिशन लास्ट ईयर हुआ नहीं, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. So I was like I should not sit Vela and then instead I should work. So yeah, somehow I got into the interview of Indigo of the airlines. And then yeah, after a few months मतलब मुझे तब बोल दिया गया था कि I've been selected, and within 15 days I'll be getting a call and then I'll be sent to Delhi. But yeah, it didn't work that way. मुझे 6 महीने के बाद call आया कि we have a vacancy and stuff. So yeah, that's how I got in. But other than that, this is not actually my field. I am mostly into performing arts. I do occasional stand-up comedies, motivational speaking, occasional podcasting. I'm into content creation. I recently did a diploma in filmmaking in Wow. direction specific. Yeah, so I'm more into performing arts. मुझे stage देख के बड़ी craving होती है कि यार मुझे audience में बैठना नहीं है. मुझे I want to handle this audience. So I'm that is more. currently I'm currently feeling शायद हम इस पॉडकास्ट को चेंज करके फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर सकते हैं because it's so in on the go. If you want to, we can take that. Sure, sure, of तो course, why एक not? काम करते हैं so to the audience we decided on talking upon cabin crew and ground staff. Let's skip that. Let's come to filmmaking. I think this is something which is really interesting me. So how did you choose it? Like I'm not like previously not, but from past many years I'm having this craving kind of thing towards filmmaking and the process and how things work. And Wow. I've seen many people's interviews as well and podcasts as well, and how Mhm. the casting works. How I mean, lately Netflix पे romantics, if you've Right, seen right. that, Of that course. has said a lot about how the filmmaking works. So somehow that was fantasizing, like it was like something which I find really good. तो अच्छा अब हम इसी पे बात करते हैं. So how Cool. like तुम्हारा interest, how did cat came in? Like how were you fascinated since beginning? Not really. I was not very much into the films initially. मुझे बचपन में I fell in love with this person. He's called Shahrukh Khan. तो जैसे आज की एज में हम बच्चों को मोबाइल यूट्यूब दिखा के चुप करा देते रोने के लिए, तो मेरे पापा की तब स्टेशनरी की शॉप होती थी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगा रहता था. तो जब Hmm. मैं रोता था तो मुझे उस समय दूरदर्शन आता था. Hmm. 90s, आई एम 90s किड. तो उस पे एक सर्कस का कोई शो आता था जिसपे झूला झूल रहे हैं लोग, हाथी है. तो मेरे मम्मी पापा ना मुझे चुप कराने के लिए वो दिखाते, देख देख उधर देख. बट आई यूज्ड टू स्माइल विद दिस गाय स्विंगिंग इन ऑन द रोप्स. और मुझे नेचुरली हंसी आ जाती थी कि यार, आई डोंट नो, मुझे तब का याद नहीं है, पर आई रिमेम्बर कि उनको देख के, उनका ऑरा देख के आई यूज्ड टू स्माइल. बट समहाउ फिर ग्रेजुअली मेरे जो बड़े भैया हैं, मुझसे 4 साल बड़े हैं वो, तो ही वाज द वन. उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई. उन्होंने घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कराया. उन्होंने मुझे ढेर सारी इंग्लिश मूवीज दिखाई, मूवी यानी मूवीज दिखाई. That's एंड fine. या Hmm. तो उनके कारण मैं आया. और समहाउ मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि बचपन में मुझे मेरी मम्मी ने क्लासिकल सिंगिंग सिखाई 4 साल. Wow. सो Hmm. या दैट्स व्हाई परफॉर्मिंग आर्ट्स की. मैंने बचपन में, मैं स्कूल में क्वायर ग्रुप में था, तो स्टेज का बहुत वो रहता था कि मैं हमेशा स्टेज पे रहता था मोस्टली. पर अभी भी आई एम स्टिल वेरी मच नर्वस एवरी टाइम आई हैव टू गेट अप ऑन द Perform. स्टेज. माइक एटलीस्ट इट शिवर्स, द होल हैंड स्टिल शिवर्स. तो या मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं सोचता था कि नहीं, मैं तो इंडियन आइडल में जाऊंगा. मैं गया भी था बचपन में काफी लिटिल चैम्प्स के ऑडिशंस में, मम्मी लेके जाती थी मुझे. सो तब तो नहीं सोचा था फिल्म मेकिंग का. पर देन इवेंचुअली जब मैं मूवीज देखने लगा काफी, और
बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ ना हमको काफ़ी वो लगती है, इंटरेस्टिंग कुछ-कुछ मूवीज़ में कि यार ओह! अच्छा ये शॉट ऐसे दिया था, अच्छा ये। तो समहाउ मैं जब कुछ-कुछ मूवीज़ के आखिरी में बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, जैसे गोलमाल में दिखाते हैं या फिर समहाउ कोई ना कोई सी मूवीज़ में दिखाई देते हैं। तो हाँ। मुझे वो देख के ना बड़ी वो क्रेविंग हुई कि यार ये हाउ डज़ दीज़ थिंग्स वर्क? मुझे बचपन में ऐसा लगता है मुझे तो ऐसा लगता था ना कि ये सब हो रहा है किसी के साथ। फिर मुझे बताया गया कि नहीं ये तो एक्टर्स हैं, इनको दिस इज़ देयर जॉब और फिर डायरेक्टर होता है, कोई ये होता है। देन मैं जब ये जवानी है दीवानी जब मैंने देखी थी, तब मैं स्कूल में था 11th या 12th में और तब से मेरा करियर पूरा चेंज हो गया था कि मुझे तो ट्रैवल जर्नलिस्ट बनना है, मेरे को इलाही गाना पूरा जीना है। तो मैंने मास कम्युनिकेशन चूज़ किया अपने कॉलेज लाइफ में और हुँ। वहाँ पे मेरा जो कॉलेज था काफ़ी फैंसी कॉलेज है इंदौर में। मतलब वहाँ पे मोस्टली इवेंट्स होते हैं। तो हम लोगों को हमेशा कभी न कभी स्टेज पे चढ़ना ही है वहाँ पे। तो मतलब मोस्टली ऐसा है कि नहीं आपके बच्चे को हम स्टेज पे चढ़ाएँगे स्टेज पे तो समहाउ तो वहाँ पे मुझे बहुत डराया गया मेरे सीनियर्स द्वारा कि यार इलाही गाना दिखने में बहुत अच्छा है पर यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड मेहनत टू बी देयर कि तुम वर्ल्ड ट्रैवल करोगे एंड यू विल गेट पेड। समहाउ बाय द ईयर और पता नहीं मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस इतना वो नहीं था जैसा मैंने सोचा था बचपन में। मैं 6 महीने में काफ़ी बोर हो गया। एक तो कॉलेज बहुत दूर था, मैं सारे रास्ते एक्सप्लोर करके मैं बोर हो गया था। तो मैं ऐसा तो सोच लेता था कि अरे अब आज कौन से रास्ते से जाऊँ? वो सोच के ही मेरा वो रिलीज़ हो जाता था केमिकल सेरोटोनिन अ, या फिर जो भी एक केमिकल है, हाँ। तो वो रिलीज़ हो जाता था, मैं जाता ही नहीं था कॉलेज। तो मेरा वो ना ड्रिफ्ट ऑफ हो गया ट्रैवल जर्नलिज़्म वाला भूत। समहाउ मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर्स जो मास कम्युनिकेशन की थे, वो शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह बनाते थे और वहाँ पे उसके कुछ 1-2 साल बाद मैंने स्टैंड-अप्स वग़ैरह देखना स्टार्ट किया। तो ट्रैवल जर्नलिस्ट से मेरा सीधे स्टैंड-अप कॉमेडी में काफ़ी आ गया। ज़ाकिर भैया बोलता हूँ मैं, इंदौर से हैं वो भी। तो मिला भी हूँ उनसे काफ़ी बहुत प्यार से उन्होंने ट्रीट किया था, मुझे बैक स्टेज ले गए, उनका पूरा एक परफ़ॉर्मेंस हक से सिंगल जब रिलीज़ नहीं हुआ था, तब उन्होंने इंदौर में पहली बार परफ़ॉर्म किया था, तो मैं बैक स्टेज पे साथ में खड़ा हुआ था और वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो बहुत अच्छे से ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि मैं ना बहुत वो हो गया, फ़ैसिनेट हो गया कि यार ये दिस इज़ व्हाट आई वांट कि यू नो आई श इफ आई एम स्पीकिंग, पीपल आर लिसनिंग और समहाउ आई गॉट टू हियर दिस अ लॉट अबाउट माय सेल्फ कि मुझे बहुत शर्म आती है खुद की तारीफ़ करने में। पर हाँ, मुझे ऐसा बोला गया है लोगों के कि यार तू बोलता है तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में। तो वाओ! बोला कर। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पॉडकास्टिंग आल्सो रिसेंटली। वाओ! तो फ़िल्म मेकिंग तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैं शायद डियर ज़िंदगी का ट्रेलर देख रहा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट हुआ कि ट्रेलर में ऐसा एक सीन है कि शाहरुख खान और वो आलिया भट्ट खड़े हैं बीच के किनारे और शाहरुख खान इज़ आस्किंग कि मेरे डैड मुझे रोज़ संडे को यहाँ पर समुद्र से कबड्डी खेलने लाते थे। और फिर वो सीन है जिसमें शाहरुख खान इज़ रनिंग टुवर्ड्स द सी वेव्स एंड द कैमरा इज़ मूविंग। तो वो देख के मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि वॉव मैन दिस दिस इज़ समथिंग ये हो रहा है, ये कर रहे हैं कोई। और इतनी सी लेंथ में हमें बहुत सारा दिखा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। देन बीइंग अ कॉमेडियन और फिर थोड़ी-सी ट्रेजेडीज़ भी हैं लाइफ में हमारी सबकी। तो हुँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक होता था कि यार क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन को काफ़ी मानता हूँ आइडल, जिम कैरी को मैं काफ़ी मानता हूँ, तन्मय भट्ट। तो ऐसे कुछ-कुछ लोग हैं जिनसे ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मैच होने लगी मेरी। तो मैं ऐसा सोचने लगा यार मैं इंदौर का एक छोटा-सा शहर का लड़का, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरे को सब लोग ऐसे जानते हैं कि हाँ, ये आता है तो मस्ती होती है। पर जब मैं सीरियस बातें करता था तो ना कोई सीरियसली लेता नहीं था एंड दैट यूज्ड टू रियली हर्ट मी अ लॉट। यार नहीं आई एम रियली ट्राइंग टू क्राई और यू नो शेयर समथिंग बट द पीपल आर स्टिल वेटिंग कि नहीं ये कुछ बोलेगा भी फनी हो जाएगा। तो या दैट हैपेंड एंड फिल्म मेकिंग का ये सब क्योंकि मैंने बहुत सारा ये सब देखा हुआ था, मेरे भाई के साथ मूवीज़ देखी हुई थी। चार्ली चैपलिन जब मैंने आई एम सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो गया। जब मैं ये हुँ। सब चीज़ें देख रहा था, इमेजिन कर रहा था कि यार ये कैसे बना होगा, ये सब कैसे दिखा होगा। उस समय मैं चार्ली चैपलिन की एक बायोपिक है जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने चार्ली चैपलिन का रोल प्ले किया है। वो 92 की फ़िल्म है। तो मैंने वो अचानक से एक दिन देखी, मैंने वाओ यार बायोपिक है ऑलरेडी इनकी। मैंने वो देखी, फिर चार्ली चैपलिन्स के काफ़ी वीडियोज़ देखे मैंने, तो उसमें लोगों ने ना वीडियोज़ में ब्रेक डाउन किया कि उस समय में 60s और 50s में चार्ली चैपलिन कैसे शूट करते थे। क्योंकि उस समय कैमरे बहुत बड़े होते थे, मूव नहीं कर पाते थे और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती थी, पर वो उतनी सी फ्रेम में, उसके सामने सारा पागलपन करते थे और पूरी दुनिया को उन्होंने हँसाया, बिना एक हुँ। डायलॉग के।
और उसमें उन्होंने बहुत से क्रेज़ी सीन बताए कि वो एक वॉल क्लॉक टावर पे हुँ, लटके हुए हैं, दैट इज़ सो फेक। जब उसका मेरे को मैकेनिज़्म देखने मिला, मैंने कहा मतलब आई वाज़ ब्लोन कि वाओ हुँ। डूड! ये तो इंजीनियरिंग और इस सब से कितना कूल, मतलब नॉट कंपेयरिंग, वो ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग के कारण हमारी दुनिया मूव कर रही है, पर मुझे ऐसा लगा यार नॉर्मल चीज़ों से बहुत कूल है ये, मुझे सीए-वीए करना नहीं है, मेरे को फालतू, मेरे को नहीं होती बैलेंस शीट मैथ मुझसे। मैं सस्पेंड अकाउंट डाल के कुछ नहीं कर पाऊँगा। अ, तो साइंस मैथ्स मुझको दिया नहीं था स्कूल वालों ने क्योंकि मेरे 10th में कम मार्क्स थे। हुँ, तो या मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये प्रोसेस। फिर समहाउ मेरे जो कॉलेज के सीनियर्स थे, वो कुछ-कुछ लोग इंडस्ट्री में थे। तो मेरा पहली बार मुंबई आना हुआ कुछ कॉन्सर्ट को लेके स्लैश गन्स एंड रोज़ेज़ के, और फिर मेरा मुंबई आना काफ़ी बढ़ता रहा। तो मेरे जो सीनियर्स थे वो ऑलरेडी हमारे कुछ-कुछ जो डीआईडी के लोग हैं, कुँवर अमर सर, धर्मेश सर, राहुल सर, इन लोगों से काफ़ी उनकी दोस्ती हो गई। तो मेरे को एज़ अ किड, एज़ अ टीनेजर और एज़ अ 20s का गाय, मेरे को बड़ा एक्सपोज़र मिल रहा था कि वाओ यार! बड़े-बड़े लोग मुझको नाम से जान रहे हैं और ये सब। तो मेरे को बड़ा कूल लगा वो सब। यार दिस इज़ कूल यार, दिस इज़ वेरी कूल थिंग कि इसमें काम करके पैसा मिल रहा है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि स्टोरीज़ लिखनी रहती है, डायरेक्शन एक अलग चीज़ है, ये डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है। तो मैंने मेरे एक भैया को 2-3 साल पहले बोला कि यार मुझे अब फ़िल्म मेकिंग करना है, मेरा बहुत हो गया ये। मेरा बहुत एविएशन हो गया, मैंने बहुत सारे कॉल्स उठा लिए। मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर बीपीओ ऑल्सो। मम्मी से झगड़ा हो गया था तो ईगो पे आ गई थी कि मैंने अब आपका एक भी पैसा नहीं लूँगा मैं। तो बीपीओ से मैंने मैंने बीपीओ से स्टार्ट किया, और फिर बीपीओ में जब मैंने 1 हफ्ता हो ही गया था, तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार वो इस एयरलाइन का इंटरव्यू है, यू कैन गो देयर। तो मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैं क्योंकि जब एविएशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने आते हैं, बीट केबिन क्रू, बीट ग्राउंड स्टाफ, एंड मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ब्लेज़र में आए हैं, और बहुत डैशिंग ऑलमोस्ट मॉडल लुकिंग फेसेस वर देयर, एंड आई वाज़ लाइक नो, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। पर समहाउ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद उन लोगों को अच्छी लगी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। पर हाँ, मैं काफ़ी बोर हो गया, मैं एयरपोर्ट पे भी जब घूमता रहता हूँ ना, तो मेरे मन में ना बहुत सिनेमैटिक चीज़ें चलती रहती है। यार ये कहानी बन सकती है कि मैं, अगर मेरी कुछ कहानी बने फ़िक्शनल की, मैं ऐसा-ऐसा घुस गया हूँ, मेरे को एयरपोर्ट का बिहाइंड द सीन्स एयरपोर्ट के मालूम है। तो अब मैं एयरपोर्ट में भी जब जाता हूँ, तो मुझे तो ऐसा फिर लगता है कि हाँ, मूवी चल रही कि है। यार ये बैग कहाँ जाता है लोगों को पता नहीं है, पर मुझको पता है। बिकॉज़ आई एम द पार्ट ऑफ दिस क्रू, एयरलाइन क्रू। तो ये बिहाइंड द सीन चल रहा है अब, जब मैं वहाँ जा रहा हाँ। हूँ बैग का वो करने। तो So you काफ़ी never thought, sorry, you were no, saying no, something. please go So ahead. I was saying you never thought to be AD to someone till now, or you Uh, never got a chance. to what? AD as an assistant directing असिस्टेंट something. डायरेक्टर, या आई डिडंट थिंक अबाउट इट अंटिल मैंने डिप्लोमा का सोचा। मुझे Hmm. पता ही नहीं था कि फ़िल्म मेकिंग का कोर्स होता है, ये सब होता है। मुझे सिर्फ़ मास कम्युनिकेशन पता था, जर्नलिस्ट पता था। तो एफटीआई पुणे, सेंट ज़ेवियर्स इन मुंबई, तो मैं इन दोनों कॉलेजों को काफ़ी वो दे रहा था गोल कि हो। सेंट ज़ेवियर्स में लकीली मेरा एक बार मैं इंटरव्यू राउंड तक मैं पहुँच गया, और फाइनल लिस्ट में शायद मेरा नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में था, वो वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर नहीं हुई। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एविएशन। पर अभी मैं एयरपोर्ट पे बहुत मैं मैं क्या बताऊँ, तो सच लाइक बहुत दिल से नहीं होता है वो काम ना। वो ऐसा होता है कि जैसे मॉर्निंग 3 तरह की शिफ्ट होती है वहाँ पे। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। क्योंकि इंदौर एक छोटा-सा एयरपोर्ट है, बहुत इट्स नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब उसकी 1-2 फ्लाइट आती है, कभी-कभी दुबई से, हार्डली। तो जिस एयरलाइन में मैं काम करता था, उसी की 22 फ्लाइट होती थी दिन की। तो 3 शिफ्ट में होती थी। मेरा कभी-कभी सुबह जब रहता था शिफ्ट ना, तो मुझे ना ऐसा, मैं एक्साइटमेंट से नहीं उठता था, स्पेशली विंटर्स के टाइम। तो मैं तो 3-4 लेयर ओढ़ के सोए हम लोग। सुबह साढ़े 4-5 बजे, 4 बजे उठना है क्योंकि 1 घंटे बाद पूरा ग्रूम होके जाना है। तो Hmm. बहुत सारी ग्रूमिंग करनी है हम लोगों को, डेली शेविंग करनी होती है, डेली मतलब Hmm. ये ऐसा लगता है कभी-कभी पत्थर चाकू घिस लो यहाँ पे तो वो हो जाएगा, वो शार्प हो जाएगा चाकू। तो या समहाउ मैं Hmm. वहाँ जाता हूँ, और मैं बहुत अनइंटरेस्टिंग वे में उठता हूँ कि यार मेरा भाई सोया हुआ है, मेरे मम्मी-पापा उस रूम में सोए हैं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? हमारे घर में ऐसा कमी भी नहीं है Hmm. कि दाल में पानी ज़्यादा डाल के Hmm. खानी पड़ रही है। बट या वो ऐसा था कि हाँ, घर पे नहीं बैठ सकता। जब मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, और समहाउ मैं एयरपोर्ट के बहुत पास रहता हूँ, लाइक स्वेयर 5 से 10 मिनट नहीं है। मेरे घर से ऑलमोस्ट हर फ्लाइट लैंड होती है, बहुत नज़दीक से दिखती है। Hmm. तो बचपन से मैं एयरपोर्ट के पास रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं काम करूँगा, मैं कर रहा हूँ। जब तक मैं वहाँ जाके वो नेचर वाला सीन नहीं देख लेता हूँ कि सनसेट मेरे सामने होता है।
वहां जाके जो किक आता है कि वाह, अब लगा मेरे को कि मैं उठा हूँ इस चीज के लिए। और मुझे हम्म लोग ना बहुत वियर्ड आउट होते रहते हैं मेरे आसपास कि यार ये फोटो खींच रहा है इधर, अरे भाई चल उधर काम करना। मैंने कहा यार ये कौन देखेगा, फिर ये तो मिस आउट हो रहा है लोगों को, ये क्यों इम्पोर्टेंस दिख रहा है। और नेचर इज हाँ। सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू जस्ट गेट लॉस्ट इनटू। हम्म तो यार मेरे को वहां पे भी बहुत सारी ना कहानियां इमेजिन होती रहती है कि यार कब मैं निकलूंगा। सो फाइनली मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से कि मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो किन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि यू शुड लर्न अबाउट इट, फिल्म मेकिंग, तुम्हें क्या हम्म पता है उसके बारे में। मैंने कहा मुझे पता नहीं है ज्यादा, मैं तो बस कैमरे से कुछ तो भी बनाता रहता हूँ, somehow it comes out very beautifully, so I don't know what should I do about with this talent. हम्म तो yeah, then somebody told me कि फिल्म मेकिंग ऐसा सीखना पड़ता है, सीखना तो नहीं पड़ता, मतलब सबकी अलग अलग थेरीज हैं, बट देन मुझे ऐसा था कि मुझे मुंबई जाना है तो मैं एज ए स्ट्रगलर नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ या फिर मैं भटक रहा हूँ इधर उधर कि मेरे को कर लो और फिर मुझे वहां जाके ब्लैंक हो रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ इसके बारे में, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हो हम्म और फिर मैं जाऊँ। हम्म तो तब मुझे प्रोसेस में पता चला कि ओके, एज अ बिगिनर आई हैव टू वर्क एज एन एडी व्हिच इज असिस्टेंट डायरेक्टर। Yeah, that's why I asked it. Yeah. उसमें भी 2-3 लेयर रहती है कि फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी और फिर बहुत देखो, अब जैसे मैं बिगिनर हूँ तो मुझे बहुत छोटी-मोटी सी जॉब मिलेगी, मुझे क्राउड कंट्रोल करना रहेगा, मुझे क्लैप करना क्लैप पड़ेगा, करना पड़ेगा. या सो थिंग्स And लाइक दैट आई लव टू। sorry to cut you off. I recently heard an interview of Siddharth Malhotra, and he was सिद्धार्थ saying एंड जाकिर खान। about, yeah, he was saying about his AD experience and the clap या he used to do and how he met Shah Rukh Khan and everything. राइट। And that was so fascinating to hear that, like the whole story of obviously you start from bottom and then you and obviously everybody has challenges, but yeah, that was quite fascinating. Yeah, so yeah, coming back to you. सो या मैंने एक इंस्टीट्यूट है मुंबई, वहाँ से 3 या 4 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है। Hmm. तो उसमें उन्होंने बोला है कि हमको 5 प्रोजेक्ट भी मिलेंगे बनाने को। Hmm. अलग-अलग तरह के, एक वन टेक शॉट होता है कि एक बार कैमरा स्टार्ट हुआ तो वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमको पूरी मूवी शूट करनी है 5 से 10 मिनट की। Hmm. तो अभी तक वो मेरी एक ही मूवी बनी है। अच्छा. या तो पूरे कॉलेज में मैंने घूम के मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखी भी है वो कहानी। एंड Wow. मुझे इतना कोई कॉन्फिडेंट नहीं है तो अभी इसलिए मैंने कहीं पोस्ट नहीं की है। अच्छी बनी है वो, मतलब जिन जिन लोगों को मैं बताता हूँ वो तो पता नहीं प्यार के कारण कर देते तारीफ, पर मेरे एज एन आर्टिस्ट मैं वो इतना सेटिस्फाइंग फील नहीं हुआ। तो Hmm. जब मैं पढ़ रहा था ना इस सब बारे में, Hmm. Hmm. तो काफी सारी, मतलब एक बहुत बड़ा वो है यार, मेरा अगेन माइंड वो एक्सप्लोड हो गया। कि जैसे टाइटैनिक का, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही रील आई थी टाइटैनिक की मेकिंग, तो बहुत छोटा सा ना शिप बनाया हुआ है। उसमें Hmm. उन्होंने पानी छोड़ा और उसमें से एक बहुत बड़ा सा छोटा सा कैमरा ऐसा ज़ूम आउट किया, तो वो पानी, आई वाज़ लाइक नहीं, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले ही आईमैक्स सिटी में देखी है, तो बड़ी शिप में होना चाहिए था। सो जब मैं पढ़ रहा था तब बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि बहुत सारे रूल्स होते हैं कैमरा को लेके। एज़ अ Hmm. डायरेक्टर हमको बहुत सारे रूल फॉलो करने होते हैं। देयर इज़ 180 डिग्री रूल की एक लाइन बनी है, Hmm. उसको हम ऐसे घूम के क्रॉस करके नहीं कर सकते क्योंकि फिर एज़ अ व्यूअर जो बंदा राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा। Oh सो देयर आर wow. अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई गॉट टू लर्न कि अगर वो करना भी है तो उसका बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास एज़ अ डायरेक्टर। और Hmm. बहुत सारे लोग वो रूल तोड़ते हैं, पर वो बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं। क्रिस्टोफर नोलन है वो, क्विंटन टेरेंटिनो है वो, और हमारे बॉलीवुड में करण जौहर, ऐसे लोग हैं, वो ये रूल तोड़ते हैं और वो बड़ा वाजिब भी लगता है देखने में। एकदम डिस्टर्ब Hmm. नहीं हो जाती ऑडियंस। हर एक Hmm. शॉट के बीच में ऐसा होता है, शॉट ये होता है, सीन ये होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। Oh फिर हमने wow. हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पढ़ी, जिसमें सत्यजीत रे जी के बारे में बताया गया एंड ही वाज़ लाइक अ जीनियस पर्सन, आई स्वेयर। मतलब वो उस Hmm. ज़माने के, जब चार्ली चैपलिन ये लोग भी थे, Hmm. तो सत्यजीत रे का ना उन्होंने वो बताया कि उस समय अगेन कैमरा की बहुत डिफिकल्टी होती थी। अभी तो बहुत सारा डिजिटलाइज्ड है। तो उस समय ना पहले क्या होता था कि एक जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। फ़िल्म Hmm. मेकिंग में ऐसा होता है कि अब जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास स्क्रिप्ट होना चाहिए बड़े डायरेक्टर्स के पास ले जाने के लिए कि सर ये मेरी कहानी है। उसके बाद होता है स्क्रिप्ट का Sorry, one शॉर्ट। question here. Oh, sorry. स्क्रिप्ट का मतलब लाइक लाइन वाइज के इसने ये बोला तो मैंने ये बोला फिर इसने या फिर इट्स अ हाई लेवल स्टोरी सो स्क्रिप्ट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन्ड। कि स्क्रिप्ट इसने ये बोला तो फिर मैंने ये कहा फिर या नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ मतलब बिल्कुल लाइन टू नो, लाइन इट्स डायलॉग नॉट अ नहीं. स्टोरी लाइन। स्टोरी जैसा नहीं होता है कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट हाँ. इज लाइक, स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। उसमें हमें शुरू में लिखना रहता है कि एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। तो उसका EXT INT इंटीरियर ओ का शॉट है, तो वो हमारे मन में वहीं से सेटअप वहीं हो से रहा है पिक्चर शुरू होनी शुरू. कि हमारे हेड में एज ए स्क्रिप्ट रीडर
हमारे मन में कि अच्छा ये बाहर का सीन है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर हम्म मतलब कहीं ना कहीं अंदर का सीन है। फिर वहां हम्म, पर लिखा रहता है कैफेटेरिया, तो इंटीरियर कैफेटेरिया का, एक्सटीरियर मतलब वो कहीं भी ग्राउंड कहीं होगा या कहीं बाहर ओपन छत होगी, एक ठीक है। बालकनी होगी, सो दैट इज हम्म एक्सटीरियर। उसके बाद हम्म, डे या नाइट लिखा रहता है, डे हम्म, का सीन है, नाइट का, तो उस हिसाब अच्छा। से हमको इमेजिन करना है। फिर हम्म उसका ना सीन जो दिख रहा है हमें स्क्रीन पर, उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन रहती है लाइन में। लाइक अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर मैं बात करूँ तो इसका ये रहेगा कि इंटीरियर सीन, हम्म, नाइट टाइम, शॉट वन या सीन वन, उसमें ये रहेगा कि टू पीपल टॉकिंग ईच about a अदर। podcast or या something like या that, and they are connected with हम्म digitally this is, और रूम में ऐसे बैठे हुए हैं। हम्म, सो ये सीन सेटअप हो गया लोगों के मन में हम्म, कि ये ऐसा सीन है। ऐसे चल रहा है। वहां पे फिर आपका नाम लिखा रहेगा कि स्तुति, और उसके आगे कोलन रहेगा, फिर आपका डायलॉग रहेगा। तो वाह। आपको उतने ही डायलॉग लेना है, उतना ही बोलना है। फिर उसमें मेरा डायलॉग आएगा कि आदित्य उसने ये बोला। हम्म ये होती है स्क्रिप्ट। इसके बाद होता है शॉर्ट ब्रेकडाउन, जिसमें ये होता है कि हम लोग एज अ डायरेक्टर हम बताते हैं कि ये वाला जो स्तुति डायलॉग बोल रही, तो कैमरा यहाँ मेरे कंधे के पीछे होना चाहिए, तो इसको हम्म, बोलते हैं ओटीएस, ओवर द शोल्डर, मेरे ओ कंधे पे। तो जब ओ, दो लोग सामने आमने बात करते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा कि एक शॉट रहता है इसके कंधे से, सामने हम्म वाला जो बोल रहा है उसका, एक शॉट उसके कंधे का रहता है, जो हम्म जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हम्म हैं ओटीएस। तो ये वाला कि ये सीन मुझे ऐसा चाहिए, पर नहीं, मेरे को ओटीएस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे ये साइड में कैमरा रखना है, यहाँ हम्म से हो। तो कैमरे के भी एंगल होते हैं अलग अलग, कैमरे का मूवमेंट होता है, तो उसके बारे में हमें बताया गया कि अगर कैमरा स्लो मूव कर रहा है तो उसका एक कुछ रहता है, और अगर हम पैन इन कर रहे हैं, जूम इन हो रहा है, तो इट्स नॉट जूम इन, इट इज एक्चुअली, इट इज कॉल्ड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ फिल्म मेकिंग, इट इज पैनिंग इन, कि हम पैन इन कर रहे हैं कैमरे को। तो वो क्यों होता है उसका भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि हर चीज ना बहुत साइकोलॉजिकली वे में रिलेटेड है। हम्म बीट द कलर्स, बीट हम्म द कलर पहले, हम्म बीट पर्टिकुलर एंगल और शॉट ऑफ द फिल्म। तो हम्म जैसे कि अगर हाई एंगल पे है कुछ, हम्म, तो हाई एंगल पे है तो मैं नीचे दिखूंगा उसमें, ऑब्वियसली दैट हाँ। मीन्स, हाँ, दैट मीन्स कि मैं अभी थोड़ा शेडो वाला रोल है मेरा, मैं तो हम्म, सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऊपर से किसी को नीचे देखते हैं तो हम सोचते हैं ना कि इंफीरियर है। तो वाओ, दैट इज लाइक रियली फिल्म मेकिंग, दैट्स हाउ दे इट्स शो। सो डिटेल्ड एंड डीप। एग्जैक्टली exactly. और जब हम देखते हैं हमें रियलाइज नहीं होता है, हमें पता है कि अच्छा ये बंदा क्रिमिनल है, पर वो इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्चुअली शॉर्ट भी ऊपर से देख रहे हैं उसको नीचे। डियर हम्म जिंदगी, सॉरी नॉट डियर जिंदगी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा का एक बहुत फेमस सीन है, जब इमरान ऋतिक रोशन को, फरहान अख्तर ऋतिक रोशन को सॉरी बोलते हैं, हम्म जब उनके डैड से मिलके एक राइट। उस सीन का ब्रेकडाउन हमको दिखाया था, या मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, तो उसमें ऐसे ही है कि ऋतिक रोशन खड़े हुए हैं, फरहान हम्म अख्तर बैठे हुए हैं। सो हम्म, दिस इज अगेन कि ये ओ बंदा वाओ। सॉरी फील कर रहा है, ही इज लिम्बरिंग डाउन, लोअर डाउन है इसका। ऋतिक रोशन थोड़ा हाई अथॉरिटी पे भी, उसके पास हम्म पावर है इसको माफ करने का। तो हम्म वो एंगल ऐसा है कि ऋतिक रोशन का नीचे से ऊपर है, कि हाँ हम उसको ऊपर देख रहे हैं, हाँ ऋतिक रोशन सही है यहाँ पे। हम्म, फरहान अख्तर को हम वी आर लुकिंग डाउन, कि हाँ इसकी गलती है, फाइनली इज यू नो कन्फेसिंग। कन्फेसिंग। नुआंस मतलब बहुत ज्यादा है, आई मीन टू टेल टू अ डिफरेंट लेवल। एंड इट डजंट एंड हियर द लाइक, मेरे तो बहुत सवाल होते थे, क्योंकि हम्म, जब ये चीजें मेरे को एक एक करके, जैसे आपको भी पता चल रही, तो ऐसे ढेर सारी जैसे क्यूरियोसिटी एक छोटे ब्लोइंग से। अप, हाँ, हाँ, इट्स लाइक ओ माय गॉड, इज दैट सीन, एग्जैक्टली या या एक छोटे बच्चे जैसे ना, वो क्यूरियोसिटीज की ये क्यूरियोसिटी क्यों हो रहा ग्रुप है, ये सूरज क्यों, क्यों, वैसे मेरे को ना हर चीज होती थी कि अच्छा ये एंगल हो गया, पर है। ये कलर जो हमको उनका शर्ट का दिख रहा है, व्हाट डज दैट मीन। सो हम्म देन अगेन वो भी मीनिंग है, हर चीज हमें बताई गई है कि डायरेक्टर का जो पावर रहता है वो ये रहता है कि हर चीज जो स्क्रीन में एक पर्टिकुलर सीन और एक शॉट में दिखाई जा रही है। अब जैसे मैं आपके बैकग्राउंड में अगर कुछ देख पा रहा हूँ, और ये हम्म पर्टिकुलर मूवी का शॉट है जो मेरी है, तो हम्म उसमें मुझे एक हम्म एक चीज का मीनिंग होना चाहिए कि ये वहां पे क्यों है। अगर वहां पे कुछ भी ऐसी चीज हम्म नहीं है जो हम्म, मीनिंगफुल नहीं है, तो वो सीन वो वो पूरा जाएगी। फेल हो जाएगा, वो रीटेक लेना पड़ेगा कि यार ये क्यों है वहां पे, शुड बी रिमूव। हम्म तो एक एक चीज इट इज मीनिंगफुल, वहां पे कुछ भी दिखाया गया है उसका कुछ मीनिंगफुल है, उसका कुछ जस्टिफिकेशन है डायरेक्टर के पास। तो ऐसी कलर का एक पूरा टॉपिक है कि कलर पहले, देयर इज अ होल टॉपिक कलर का, और फिर उसमें हमें कलर पहले बताया, ग्रे और ब्लैक स्केल, और फिर ऑल द अदर कलर्स, तो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये फोर आर द मेजर कलर्स, और हर कलर का एक इंडिकेशन होता है। तो जैसे एक बहुत फेमस सीरीज है ब्रेकिंग बैड, हम्म बहुत ही फेवरेट सीरीज है मेरी, मेरे भाई ने मुझे जिद करके दिखाई थी। हम्म वो मैंने देख ली है, आई बिकेम अ फैन बॉय और समथिंग। और उसका कई सालों बाद मैंने पोस्ट देखा हम्म कि ब्रेकिंग बैड के जो क्रिएटर है विंस गिलिगन,
उन्होंने हर सीजन और हर एपिसोड के हिसाब से जो उनका जो प्रोटैगनिस्ट है वॉल्टर वाइट, उनका ना कैरेक्टर हर एपिसोड में डार्कर होते जा रहा है, डार्कर होते जा रहा है। So actually, he starts with a chemistry teacher, and then he becomes a drug वो लीडर। producer, वो lead dealer. लीडर। हर एपिसोड में पहले जब केमिस्ट्री टीचर है तो उनका बहुत ही लाइट सा कलर पहना हुआ है, पर हर एपिसोड और हर सीजन के हिसाब से ना उनके कॉस्ट्यूम का कलर चेंज होता गया उनके कैरेक्टर के हिसाब से, कि वाओ। उनका कैरेक्टर जितना डार्क होते जा रहा है ना, उनका कॉस्ट्यूम, उनका कलर, स्क्रीन टोन सब कुछ डार्क होते जाता है धीरे धीरे। और एज एन ऑडियंस वी डोंट रियलाइज दिस, हमको ऐसा लग रहा है वाह यार ये कैरेक्टर कितना डार्क होते जा रहा है। पर नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, अब जब मैं फिल्म देख रहा हूँ तो मेरे मन में ना 5-6 टैब खुले हुए हैं। ओह अच्छा इस सीन का ये मतलब है, ओह अच्छा अच्छा ये ऐसा लिया है। कई बार मैं भूल भी जाता हूँ क्योंकि मैं इतना एनग्रोस हो जाता हूँ, अगेन दैट साइकोलॉजी प्लेज विद अस, कि अगर किसी ने कुछ कपड़े का पहना है, पीछे की दीवार भी कुछ इस कलर की है, तो एवरीथिंग इज मीनिंगफुल, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, सब कुछ स्क्रिप्टेड में लिखा हुआ है कि ऐसा है वैसा है, और हर चीज का एक रीजन है। और ये सब चीज सबसे ज्यादा प्यारी है कि ये हमें साइकोलॉजिकल एज एन ऑडियंस इतना इन्वॉल्व कर लेती है कि हम उस कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं, उस कहानी में इतना घुस जाते हैं, और विजुअली काफी चीजें हमें याद रहती है। बात रहती है। तो दिस हैपेंस विद अस इन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम सबके साथ कोई भी हम सीरीज स्पेशली नेटफ्लिक्स एंड प्राइम पे देख रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, व्हेन इट एंड्स अ वो इट क्रिएट्स, राइट? करेक्ट, क्योंकि वी आर सो मच इन्वॉल्वड इन दैट स्टोरी एंड दोज कैरेक्टर्स एंड व्हाट ट्रू, दे आर डूइंग, सो या I mean, I can completely understand as an audience perspective, not obviously with the professional perspective. Yeah, करेक्ट। sorry, you were saying something on that. या सो अब इसमें प्रोसेसेस रहती हैं कि अब स्क्रिप्ट तैयार है, स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई कि हाँ इस पे फिल्म बनाई जा सकती है, तो उसका शॉर्ट ब्रेक डाउन होता है। तो अब स्क्रिप्ट में ही बहुत रफ वर्क करते हैं। अब जैसे मेरी स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई तो मैं फटाफट, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा शॉर्ट ब्रेक डाउन तैयार है, तो मुझे फटाफट, अगर मेरे पास तैयार नहीं है तो मैं उनको इसी स्क्रिप्ट में बताऊंगा कि सर ये सीन में ना ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, स्टैटिक एंगल, स्टैटिक कैमरा है, नहीं ये उसमें मूविंग है, इसमें ये यूज होगा, इसमें ये वो यूज होगा, इसमें मतलब हर चीज फिर हमको लिखना पड़ती है शॉर्ट बाय शॉर्ट। और एक शॉर्ट ब्रेकडाउन जो कहा जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो सत्यजीत रे के टाइम से वो चलता आ रहा है। उसमें क्या रहता है कि जैसे अभी तो काफी डिजिटलाइज हो गया मामला, पर तब ना सत्यजीत रे यूज टू एक्चुअली, जैसे कॉमिक कैसा रहता है ना, एक स्क्वायर इधर है, एक स्क्वायर इधर है, उसमें छोटी छोटी कहानी है कि बूम, फिर दूसरे स्क्वायर पे कहानी जा रही है। सत्यजीत रे ही यूज टू एक्चुअली मेक इट एज अ कॉमिक स्ट्रिप। वो एक एक चीज का स्केच बनाते थे, और उसके हिसाब हाँ। से एग्जैक्ट सेम वो शूट कर लेते थे। तो उन्होंने, उनके काफी फेमस स्केचेस हैं ऑनलाइन, हमें दिखाए गए थे पढ़ाते समय, वी वर ब्लोन कि वाओ मैन, सच अ जीनियस पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज recognized till date, and I feel कि obviously he'll be remembered for coming generation and whatnot। तो शॉर्ट ब्रेकडाउन होता है कि हमें उसमें ईज के लिए हमारे डीओपी को, अब मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं शूट नहीं करूंगा कैमरा लेके, मैं सिर्फ बताऊंगा लोगों को कि देखो ये ऐसा करना है वैसा करना है। तो जो डीओपी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, राइट। जी, तो उनको मुझे एक एक चीज समझानी है कि देखो ये वाला सीन ना ऐसे लेना है, ये इसके पीछे भाग रहा है तो आपको गिम्बल पकड़ना पड़ेगा, आप बताओ कि क्या करना है। मेरे हिसाब से तो ट्रॉली वाला शॉट है। फिर डीओपी बताएंगे कि नहीं यार ट्रॉली में उतना मजा नहीं आएगा, आप करके देख लो, पर मैं चाहता हूँ कि डीओपी वो उसको गिम्बल में मैं हैंड हेल्ड करके करूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो देन एज अ डायरेक्टर वी हैव टू लिसन टू क्या इनको ज्यादा आइडिया है, तो ऑफ कोर्स एंड देन इट कम्स आउट वेरी नेचुरली। पर अगर मैंने सोचा हुआ है कि नहीं ये मेरी कहानी है, मुझे तो गिम्बल नहीं चाहिए, मुझे इसमें ट्रॉली शॉट ही चाहिए, तो देन ऑफ कोर्स फिर उस हिसाब से होगा। तो शॉर्ट ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद एक अलग अलग वो बनते हैं, व्हाट डू आई से, डिपार्टमेंट। तो डायरेक्शन का डिपार्टमेंट में आपको मालूम है ऑलरेडी, एडी होता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स असिस्टेंट भी होता है, तो एक डीए भी टर्म है, डायरेक्टर असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर। तो डीए इज लाइक अ पर्सनल फेलो विद द डायरेक्टर। So ओके। yeah, he's almost like half the director or maybe the first AD you can say। एंड उसके बाद होता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद स्टोरी वाले, अगर स्टोरी अलग किसी इंसान ने लिखी तो उनका डिपार्टमेंट होता है। फिर साउंड डिपार्टमेंट होता है, एडिटिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, केटरिंग डिपार्टमेंट, ये सब, और ये सब कोलैब होके एक पर्टिकुलर फिल्म या फिर उसका सीन भी शूट होता है। तो जब ये सब मैं देखता हूँ ना अब होते हुए मेरे आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है यार कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ये सब करने में। दैट्स सो ट्रू। मतलब हम एक
5 सेकंड का जो सीन देख रहे हैं, वो एक्चुअली में ना 60 बार शूट हुआ होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रीटेक हुए हैं उसके, पर वो था इतना ट्रिकी कि अब जैसे थ्री इडियट्स का एक बहुत फेमस सीन है कि वो दोनों जो चाँद चढ़ के 2 दोस्त रहते हैं हमारे, आमिर खान के जो दोस्त रहते हैं, वो हम्म। घर पे पापा से बात करके आ जाते हैं और इधर राजू रस्तोगी इंटरव्यू जीत के आ जाता है। तो वो उनको सलाम, तोहफ़ा कबूल करो जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में इमेजिन करके कर रहे हैं। तो जब वो तोहफ़ा कबूल करो उस समय आमिर खान नहीं खड़े हैं सामने। इट्स जस्ट दे आर इमेजिनिंग कि वहाँ पे खड़े हैं एंड दे आर टेकिंग ऑफ देयर पैंट। आमिर खान के सामने वो 2 लोग नहीं खड़े हैं। तो वो उन्होंने इमेजिन किया आमिर खान ने कि अच्छा इन्होंने अब दे हैव टेकन ऑफ देयर पैंट्स, राजू रस्तोगी व्हीलचेयर से उठ चुका है। तो आमिर अच्छा, खान यू आर सेइंग कि वो डिफरेंट टाइम पे शूट हुए हुए हैं दोनों सीन। एग्ज़ैक्टली या वो आमिर ने शूट करा होगा एंड देन ही वाज आउट ऑफ द शेड्यूल एंड दीस एग्ज़ैक्टली टू केम इन। दैट्स ओह। व्हाट। पर ओह। बिहाइंड द सीन नहीं, पर एक ऐसा शॉट भी है उसमें जिसमें दिख रहे हैं आमिर खान। पर वो कुछ ना कुछ ट्रिकी होगा उस समय कि वो नहीं कर पाए, तो वो 2 सीन अलग-अलग शूट हुए। तो ऐसा बहुत नॉर्मली भी मैंने एक और फ़िल्म छोटी-सी बनाई थी, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर थी। पर वो ऐसा सिटिंग एरिया में ही था कि बैठे हैं 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है कि वो परेशान है और दूसरा बंदा उसको रोस्ट करने लग गया कि अरे कोई कुछ नहीं होता डिप्रेशन वगैरह। तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा चैलेंज नहीं था। पर हाँ, उसमें मुझे पता चला कि ये डॉली शॉट ये होता है, ट्रैक शॉट ये होता है, वो होता है। तो आई वाज़ द डायरेक्टर, वो मेरी पहली फ़िल्म थी और मेरे सर थे मेरे साथ, वो काफ़ी मदद करा रहे थे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मेरी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसमें सब इस ब्रेकडाउन है कि ये वाला शॉट ऐसा है, मिड एंगल, लोअर एंगल, हाई एंगल सब लिखा हुआ है। मैं सॉरी मैं लाइटिंग डिपार्टमेंट तो बोलना ही भूल गया, बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ कैन आई फॉरगेट? या। तो या तो हम्म। लाइटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें ना जैसे कि एक बंदी ने एक डायलॉग बोला, तो पहले सिर्फ़ उसी का शॉट लिया जा रहा है, पर इधर दूसरे जो 3 लोग हैं, वो भी उनका डायलॉग बोल रहे हैं, तो फिर वो बोल रही है। फिर ये हो गया, एक बार नहीं हुआ, एक दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार में हो गया तो ठीक है ये डन। एक बंदा जो रहता है असिस्टेंट डायरेक्टर, वो साथ में कंटिन्यूटी नोट करते जा रहा है। कंटिन्यूटी ऐज़ इन कि अगर मेरा शॉट है कि मैं पानी से प बॉटल से पानी पी रहा हूँ, तो अगर ये टेक नहीं हुआ, पानी तो कम हो गया ना इसमें। अब अगर हम्म। दूसरे सीन में अचानक से कुछ ऐसा आ जाए कि पानी पूरी बॉटल खाली है, तो कुछ लोग जो रहते हैं ना एकदम फ़िल्म बफ़, वो पकड़ लेते हैं कि ये गलती पकड़ ली। हाँ, करते हैं तो वो। ये हाँ, मैंने देखी है। हाँ। एग्ज़ैक्टली, तो ये कंटिन्यूटी का दिक्कत होती है वहाँ पे। वहाँ पे समझ हम्म। जाओ कि कंटिन्यूटी में कुछ दिक्कत हुई होगी इसलिए पकड़ा गया। तो हम्म। कंटिन्यूटी देखते हैं लोग, फिर एक पूरी शीट रहती है, मुझे अभी उसका टर्म याद नहीं आ रहा। तो उसमें सारा ना ओके शॉट, नॉट ओके शॉट ऐसा लिखा जाता है। उसमें लिखा जाता है कि ये शॉट ये था, फर्स्ट सीन था और हमने जो इंटरव्यू देखा उसमें हमको सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया क्लैपिंग क्यों काम हम्म। आती है। तो हम्म। वो इसलिए काम आती है क्योंकि वो जब क्लैप करते हैं, हम्म। तो साउंड के बाद एडिटिंग के टाइम हमको यहाँ से उठाना है वो साउंड, उठाना है। कि ये एडिटिंग का टक हो गया, बस इसके बाद से रोल हो रहा है चीज़ें। तो हम्म। यहाँ से एडिटिंग वाला वो कट करेगा उसका और उसके बाद वो कंटिन्यू होंगी चीज़ें। तो हम्म। मैं जब ये सब चीज़ें देखता हूँ, बहुत ज़्यादा एक ऐसा ना टीम एफर्ट है सब कुछ। ऐसा हम्म। नहीं है कि डायरेक्टर ने बोल दिया है कि ये सब होना चाहिए, वैसा होता है। हम्म। तो हर एक इंसान ना सेट पे मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है। मैं कपिल शर्मा के शो में गया था, शाहरुख खान के कारण, रईस वाले एपिसोड में। तो वहाँ सब चीज़ें देख रहा था। फिर अभी जो मैं जहाँ-जहाँ पे मैं जा पा रहा हूँ सेट्स पे, तो अभी मैं जो हमारे काफ़ी फ़ेमस कॉमेडियन है इंस्टाग्राम पे विष्णु कौशल, हम्म। अ, उनका कुछ सीरीज़ का शूट चल रहा था और मेरी एक दोस्त है वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में थी। तो उन्होंने लायंस मुझे गेट पे आती है आई थिंक उसकी सीरीज, लायंस गेट या अमेज़न मिनी किया, टीवी पे। तो अब वो दूसरी सीरीज़ शूट कर रहे हैं। अच्छा। हो गई इसकी शूटिंग खत्म, अब वो सून टू बी रिलीज़्ड है, अभी एडिटिंग हुँ। चल रही होगी उसकी। तो मुझे हुँ। उस सेट पे मेरी दोस्त ने बुलाया कि तू विष्णु कौशल को पसंद करता है? मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, मैं वुड लव टू मीट हिम। एंड वहाँ पे वही पूरा मेरे को माहौल ना एज़ अ स्टूडेंट और अब एकदम प्रोफेशनल मेरे को देखने मिला कि यार वहाँ पे अब जैसे बजट है काफ़ी, तो वहाँ पे बहुत सारे बाउंसर खड़े हैं। तो जब डायरेक्टर और एक्टर सब खड़े हों, पूरी टीम खड़ी हुई है ना, तो एक डायरेक्टर चिल्लाते साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है पूरे सेट पे। क्योंकि अब रोलिंग हो रहा है, साउंड रोल हो रहा है। साउंड जब रोल होता है तो एक-एक माइन्यूट सी चीज़ों की आवाज़ आ जाती है उसमें। तो एक बंदा साउंड वाला बैठा हुआ है हेडफ़ोन लगा के। तो ही हुँ। इज़ मेकिंग श्योर कि कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो हुँ। मना कर देता है कि सर 1 सेकंड, अभी साउंड रोल मत करो, कुछ आवाज़ आ रही है, वो बंद कराओ। अच्छा पंखा चालू है। अब अपन पॉडकास्ट वाले तो अपने को पता है कि
पंखा एसी की भी आवाज आती है। एसी की भी आवाज़ आती है। मैं तो तो गर्मियों में करनी बहुत टफ, मेरे लिए सिर्फ़ एक पॉडकास्ट करनी इतनी टफ हो जाती है बिकॉज़ ईदर एसी या फिर फैन, एंड इट्स लाइक कई एग्जैक्टली, कई बार तो 40 मिनट्स इट्स लाइक यू आर कंप्लीटली इन स्वेट एंड रिकॉर्डिंग, एग्जैक्टली, सो आई कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट गोज़ इन दैट्स देयर। व्हाट। या। तो एक-एक इंसान का, इवन स्पॉट दादा से लेके स्पॉट बॉय जो भी हैं, हर एक इंसान ना उनके मन में उस पर्टिकुलर शॉट को लेके इतना डेडिकेशन रहता है कि हमें ये निपटाना है। तो शिफ्ट वाइज़ चलता है 12 या 10 घंटे का कि 7 मॉर्निंग शिफ्ट है तो 7 बजे का अगर कॉल टाइम है, तो अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो शाम को 7 बजे तक शूट चलेगा, कुछ भी हो। 10 घंटे का तो उस हिसाब से उस उतने बजे रैप अप हो जाएगा। तो उस 10 घंटों में जितना वो शेड्यूल किया हुआ है, वो करना ही है। और अगर वो नहीं होता है तो पैसा खर्च हो रहा है किसी का, हर चीज़ का एक-एक रुपया खर्च हो रहा है, लाइटिंग रेंट पे है, ये कैमरा रेंट पे है, ये रेंट पे है, हर एक इंसान वहाँ पे पेड है, कोई भी फ्री हुँ, में काम नहीं कर रहा है, अदर देन हुँ, इंटर्न्स इफ दे आर नॉट गेटिंग पेड फिर इनिशियली, अगर छोटा बजट है आजकल तो तो। इंटर्न्स को भी मिलने लग गया है कि या मिलने आई चाहिए, एम अगर नहीं ग्लैड मिलते तो मिलने चाहिए। आई फील नोबडी शुड बी अनपेड फॉर द वर्क, इवन ट्रू इफ दैट, लाइक। या। ट्रू। मैं आई फील लकी कि मैं सही टाइम पे घुस रहा हूँ अगर क्योंकि अगर नहीं, पेड है now तो it's फिर corporate, now it's थोड़ा corporate culture is coming in the industry, that's what I heard from people who I mean जिनकी podcast मैं सुनती हूँ जिन लोगों की, I think they are जी, saying that कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, but yeah. जी। so So yeah. yeah, every person on the film set is working for a particular scene and shot very very responsibly. और अगर किसी से भी थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो डांट पड़ती है कि जो भी हम्म हायर अथॉरिटी डायरेक्टर या फिर जो भी जिसको बहुत ज्यादा दिल पे लग जाती है कि यार क्यों क्यों कर रहा है ऐसे, नहीं हम्म करना है। हम्म और स्पेशली अगर किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो ज़्यादा बुरा भी लगता है कि उस बंदे को ज़्यादा बुरा लगता है और ओह शिट यार मेरे कारण इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरे time. कारण वो रील वेस्ट हो गई, ये हो गया। सो या जब सेट पे होते हैं ना हम लोग तो वी एक्चुअली सी अ ग्रेट ग्रेट टीम एफर्ट। मतलब हम्म हर इंसान उसका कुछ काम हो नहीं भी हो, जूनियर आर्टिस्ट हो या वो कुछ आर्टिस्ट हो, भले ही उस इंसान का डायलॉग नहीं हो फ़िल्म में, उसको अगर पीछे से गुज़रना भी है, हम्म तो एवरीवन इज़ वेरी डेडिकेटेड और टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा लेवल का दिखता है। इसलिए फ़िल्में जब बनती हैं, तो वो भले ही हमको ढाई घंटे, 2 घंटे की खत्म हो जाती है, पर डैम मैन उसके पीछे जो काम हुआ है, उसके पीछे जो मेहनत हुई है, पैसा खर्च हुआ है, हर एक इंसान का एक अटैचमेंट हुआ है उतना टाइम स्पेंड true that. करके। सो दैट इज़ समथिंग वेरी फिनोमिनल दैट आई लव अबाउट फ़िल्म मेकिंग। तो बेसिकली फ़िल्म मेकिंग अगेन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे, पर मैं Nahin, भी I एकदम think से ना I think we got involved too much. And before you एग्ज़ैक्टली, tell about summary, I think this is so guided or happening at the right time, because I didn't knew कि हम इस पे बात करने लग जाएंगे, because we राइट, when we chatted it was something else, and I think करेक्ट, it was meant to be this, and so ट्रू, I'm feeling so overwhelmed and happy that this हाउ happened, स्वीट, because I mean it's actually mind blowing, and it's actually quite a learning experience. Anyways, yeah, coming back to ट्रू। you. सो या ये सबसे पहले हमें बताया गया था, पता नहीं मैं मैं क्यों भूल गया। बिकॉज़ अगेन यू ऑलरेडी मेंशन कि वी बोथ ऑफ अस आर ओवरवेल्म्ड अबाउट दिस। Hmm. तो फ़िल्म मेकिंग जब शुरुआत होती है तो 3 मेजर स्टेप होती है फ़िल्म मेकिंग के। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। Post production. प्री प्रोडक्शन में सारी स्क्रिप्टिंग हो जाती है, सारे डिपार्टमेंट सेट हो जाते हैं कि ये डिपार्टमेंट लगेगा, रेकी होती है, रेकी एज़ इन लोकेशन जा के हम देखते हैं कि ये लोकेशन सही है इस पर्टिकुलर सीन के लिए। फिर वो लोकेशन लॉक होती है, फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ से परमिशन ली जाती है, वहाँ नहीं मिलती तो फिर उसके जैसे रिलेटेबल। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको छोटा-सा किस्सा बताता हूँ कि जो-जो फ़िल्में बनारस में नहीं शूट हो पाती है घाट पे, वो फ़िल्में शूट होती है महेश्वर में, जो कि है महेश्वर में सॉरी महेश्वर है मध्य प्रदेश में। अच्छा। व्हिच इज़ माय बर्थ प्लेस। तो मेरी वाओ! माय मॉम कम्स फ्रॉम महेश्वर एंड आई वाज़ बोर्न देयर। तो अशोका द ग्रेट जो मूवी है शाहरुख खान की, उसके कुछ सीन वहाँ पे शूट हुए हैं। लाइक लकीली उसी घाट पे जहाँ पे मैंने तैरना सीखा है। तो या पैडमैन पूरी वहाँ पे शूट हुई है, दबंग 3 का हाँ। गाना, दबंग 3 आदि वहाँ पे शूट हुई है, यमला पगला दीवाना और अभी पीएस 1 जो आई थी ऐश्वर्या राय की, उनके भी कुछ सीन वहाँ पे शूट हुए हैं। सो या काफ़ी सारी फ़िल्में अब जैसे यमला पगला दीवाना में महेश्वर दिखाया है, पर बोला गया है ये बनारस है। बनारस है। तो खुद मतलब सिमिलर महेश्वर लोकेशन यू हैव टू फाइंड आउट सो दैट देयर इज़ एग्ज़ैक्टली नो जजमेंट कि हाँ, गलत जगह बोल के दैट्स गलत व्हाट। जगह दिखा दी। हाँ। वही कि हमको ये चाहिए, हमें कैफेटेरिया हाँ, चाहिए, भैया सीसीडी वालों ने नहीं दिया तो हम स्टारबक्स बरिस्ता वालों के पास चले गए, स्टारबक्स एग्ज़ैक्ट में चले। बरस्ते में चले गए, जो भी है। हाँ। तो दैट्स व्हाट कि हमें कैफेटेरिया मिल गया ना, इनको जो हुँ, चाहिए डायरेक्टर को जो दिखाना है इतनी फ्रेम में, वो दिख गया बस।
तो वो मुझे वो चीज़ बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है कि इतने से कैमरे के पीछे सिर्फ़ इतना जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके हुँ, पीछे जो 100, 150, 1000 लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं काम में और ये दिखाना है हमको। सो दैट इज़ समथिंग वेरी माइंड ब्लोइंग फॉर मी। तो रेकी अगेन आई विल कम बैक टू द थिंग कि हुँ, रेकी उसको बोलते हैं कि लोकेशन जाके हम देखते हैं, कुछ लोग शूटिंग के बहुत टाइम पहले वहाँ जाके लॉक करते हैं और उससे बोलते हैं रेकी कि ये लोकेशन डिसाइड हो गई। फिर प्री प्रोडक्शन में आता है कैमरा वगैरह कौन-सा कैमरा यूज़ होगा। अच्छा ये वाला कैमरा में तो ऐसा हो गया, नहीं इससे और ज़्यादा अच्छा कैमरा आ गया, तो उसका कितना रेंट है, फिर वो जुगाड़ा जाता है। या फिर ऑफ कोर्स जो हायर बजट फ़िल्म रहती है उनके पास तो होता है। तो कैमरा से लेके फिर लाइटिंग डिसाइड होती है, क्या लाइटिंग चाहिए, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन-सा आर्टिस्ट डिसाइड होंगे, फिर कास्टिंग कम्स इन द सीन कि फिर कास्टिंग होती है, फिर द शॉट ब्रेकडाउन्स अगेन वो सब चीज़ें होती है। प्री प्रोडक्शन के बाद आता है फाइनली प्रोडक्शन जब शूट होता है, तो प्री प्रोडक्शन बोला जाता है कि सबसे क्रूशियल पार्ट है ऑफ कोर्स क्योंकि काफ़ी मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा कितने परसेंटेज ऑफ फ़िल्म, पर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फ़िल्म प्री प्रोडक्शन में मानी ओके। जाती है। तो अगर प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें मालूम है हमें जाके क्या-क्या करना है सेट पे, तो बहुत स्मूथ काम हो जाता है। पर हमें प्री प्रोडक्शन में भी यही डिलेमा है कि अरे नहीं ये वाला सीन ऐसे नहीं लेते, वैसे लेते हैं, अरे नहीं ये तो कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सेट पे जाके जो भसड़ होती है, वो बहुत अलग लेवल की होती है। तो प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो जितना प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही फ़िल्म मेकिंग में एडिटिंग को भी माना जाता है कि एडिटिंग आल्सो प्लेज़ अ की रोल। पोस्ट एडिटिंग प्रोडक्शन हुआ ना बट वो तो हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि वो प्री प्रोडक्शन में जितना है हाँ। तो वैसा। तो प्री प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आ गई, प्रोडक्शन में हमारा वो सब आता है कि केटरिंग, लॉजिस्टिक्स ये वो हुँ, लाइटिंग आ रही है, वो आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं। फिर इंटर्न्स लगते हैं अचानक से, कुछ हुँ, ऐसा हो जाता है, मिसहैप हो जाती है। तो प्रोडक्शन में मोस्टली शूटिंग कम्स अंडर इट एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, साउंड और ये सब होता है। तो कई-कई जगह ऐसा होता है कि जो लोग माइक लेके खड़े हुए हैं कैमरा के ऊपर, आपने अगर देखा हो बिहाइंड द सीन्स, तो हुँ, कुछ लोग ना ऐसे बड़े से रॉड के ऊपर एक बड़ा-सा माइक लेके कैमरा के ऊपर खड़े हुए हैं और राइट। उसमें आर्टिस्ट लोग कैमरा के सामने बात कर रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत हवा चल रही है। उस हुँ, कैमरे के ऊपर अपने को मालूम है माइक के ऊपर हुँ, हम वो जो रैप करके रखते हैं तो उससे हवा की आवाज़ कैंसल हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल दैट। हुँ, अगर कुछ ऐसे शॉट होते हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, फिर भी कन्वर्सेशन करना है, पर ट्रैफिक को तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना हम लोग, तो वहाँ पे डबिंग होती है। डबिंग होती अगेन यू नो अबाउट इट कि वहाँ पे शूट हो गया पहले और फिर है, वॉइस आर्टिस्ट ओवर। वापस जाके वॉइस ओवर देते हैं हुँ, उसका। हुँ, हुँ, डबिंग होती है, फिर एक फॉली आता है साउंड में, फॉली इज़ कि जैसे कुछ-कुछ चीज़ों की डिटेल आवाज़ अगर चाहिए, मैंने किट वो कोई-सी अगर चॉकलेट खाई क्रंच वाली, तो हमें तो नहीं आती यार क्रंच की आवाज़, बट ऐड में तो पर बहुत तेज़ आती है। एग्ज़ैक्टली तो हाँ, वो फ़ोली आर्टिस्ट का काम है, एक अलग से स्टूडियो होता है लोगों का, साउंड वाले लोगों का, जिसमें फ़ोली आर्टिस्ट अलग होते हैं, दे आर अदर देन साउंड प्रोड्यूसर और कंपोज़र। फ़ोली आर्टिस्ट अलग-अलग चीज़ों से, कुछ-कुछ चीज़ों से जैसे अगर मंजुलिका वाले घुंघरू बज रहे हैं, तो एक्चुअली में घुंघरू वो तेज़ भाग रही होगी तो अलग ही आवाज़ आ रही होगी शूट के हुँ, टाइम। पर अगर हमको बताना है, तो फ़ोली आर्टिस्ट का काम है कि वो तो करना। वो सीन देखते-देखते वो उसके हाथ से प्रॉप्स यूज़ करके आवाज़ें कर रहा है। तो ऐसे हुँ, फ़ोली आर्टिस्ट बहुत सारी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, कवर करते हैं, कंपोज़ करते हैं, जो एक्चुअली हम फ़िल्म में नहीं कर पाते। नई बात है। दैट कम्स अंडर फ़ोली। शूट के बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ये सब चीज़ होती है, एडिटिंग होती है। तो एक डायरेक्टर को ना और एडिटर को 100 बार उसकी फ़िल्म देखनी पड़ती है, दिखाई के जाती है। देखनी या पड़ती है। उसमें फिर कलर उनको सेट करना है कि कलर उसमें इतना कॉन्ट्रास्ट रखना है, ये रखना है, कलर उसका ये रहेगा। तो कलर का एक राइट। अलग ही ज़ोन है, कलर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। डियर ज़िंदगी में अगर आपने देखा हो तो, एक हुँ, छोटा-सा सीन है जहाँ पे आलिया भट्ट बैठी रहती है और कलर क्रंच करवा रही हैं। तब उनको कुछ कॉल आता है, वो चली जाती है। बहुत छोटा-सा सीन है वो, पर हाँ कलर का एक वो रहता है। फिर सीन्स दिखे जाते हैं, ड्यूरेशन कितनी जा रही है मूवी की, कैसा दिखेगा। फिर उसमें से सीन डिलीट होते हैं बहुत सारे लोगों के पैनल में कि यार ये सीन ज़रूरी नहीं लग रहा। कितना अफ़ेक्ट होगा अगर ये सीन डिलीट किया और अगर नहीं किया तो कितना अफ़ेक्ट होगा? क्या इस सीन को डिलीट करने से मूवी फ़ेल हो सकती है? बहुत क्रूशियल सीन तो नहीं है या इसके होने से फ़ेल तो नहीं हो सकती? तो बहुत सारी माइंड मैपिंग, प्लानिंग के बाद फाइनली 100 बार फ़िल्म एडिट होने के बाद, उसका कलर ग्रेडिंग, अपग्रेडिंग होने के बाद, स्केल होने के बाद, एक फ़िल्म तैयार होती है जिसमें अगेन म्यूज़िक और ये सब फिर बीजीएम तो मैं भूल ही गया। बीजीएम डाला जाता है कि ये इमोशनल सीन है, ये वाला सीन है। फिर उसमें साउंड जो हमारे लोग रहते हैं वो
सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर कुछ बहुत ही साइलेंट सा सीन है, रात का सीन है, उसमें डायरेक्टर बोल रहा है कि यार इसमें ना मेरे को एकदम इंटेंस सा म्यूजिक चाहिए, एक हम्म पर्टिकुलर एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, हम्म ऐसा हम्म वाला। पर साउंड वाले बोल रहे हैं कि यार मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि मत ही रखो, नेचुरल रहने दो, रात का ही सीन है, खाली रोड है ना, मत रखो। हम्म सो एज़ अ डायरेक्टर हमको इनपुट लेना पड़ता है कि हाँ यार, ये आइडिया सही है, एक्चुअली ज़्यादा हम्म इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें साउंड ना होने से। सो हम्म, थिंग्स लाइक दैट हैपेंस, अ लॉट ऑफ मीटिंग्स हैपेंस। उसके वाह बाद फाइनली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है और फिर वो ऑडियंस को दी जाती है और फिर यू नो पास या um, फिर yeah, then we decide कि ये ब्रह्मास्त्र एवेंजर्स जैसी क्यों बनाई, या फिर वो हमने तो ये देखा हुआ है, हमने तो ये देखा है, अरे कॉपी कर ली, वो कर ली। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे ना बहुत बुरा लगता है उन या लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा डीप में है यार। ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स आर टू आई मीन इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग दे वर टू गुड। एग्जैक्टली, मतलब हम्म हम्म जो मेहनत लगी हुई उसमें 8 साल हाँ की, वो मुझे मतलब अगर लगता है कि हाँ जितनी मेहनत लगी है and जितना ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीएफएक्स भी तो ग्रो करे होंगे ना। करेक्ट, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग हॉलीवुड से नहीं कंपेयर कर सकते तुम बट स्टिल करेक्ट, इंडियन ऑडियंस क्योंकि हमने तो सिर्फ माइथोलॉजी देखी आज तक ट्रू, महाभारत और रामायण एंड दैट हैज ट्रू, बट एनीवेज यार बहुत ना too much of learning in this podcast for me या and we decided on 30 minutes. It's already 45 and this is ओ happening from this is happening from last two podcasts for me. मैं decide करती हूँ 30 पे and but I mean actually it's interesting for me to talk and I can't राइट, stop myself and मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि guest भी रुके so करेक्ट, but I still want to because अब तो करना पड़ेगा नो it's नो like इट्स ऑल yeah गुड, आई टोटली but I अंडरस्टैंड, think we might come with another one in upcoming years when you श्योर, grow as a director or AD or श्योर, whatsoever. I wish इंशाल्लाह, that from my bottom of my heart. दैट So इज़ I वेरी स्वीट wish ऑफ we यू, can do once more again in other season. Like श्योर, I would continue this journey for sure. So thank you श्योर। so much, Aditya. On the last, like any last word for the audience, and then we'll end it. Well, I feel that as an artist और एज़ अ परफॉर्मर मुझे बहुत बुरा लगता है जब यू नो बहुत ना 4-5 लोगों में भी हम बैठे रहते हैं ना, और Hmm. हम में से बोलते हैं कोई कि यार तू गाना गा के बता, और कोई सामने वाला इंसान ना गा रहा है ना, अगर मुझे पता नहीं मुझे क्यों बात याद आई है, पर मैं बोल ही देता हूँ। क्योंकि कोई गा रहा है ना और इतने में 2 लोग बात करने लग जाते हैं, इट रियली हर्ट्स एज़ एन आर्टिस्ट। तो अगर जो भी लोग सुन रहे हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई आर्टिस्ट है या अगर आप खुद भी परफ़ॉर्म करते हैं, तो एक आर्टिस्ट को ना सिर्फ़ थोड़ा-सा अटेंशन और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा एप्रिसिएशन बहुत आगे तक Appreciation. ले जाता है, आई स्वेयर। That's so true. तो I agree. अगर आप किसी परफ़ॉर्मर के आस-पास हैं, तो प्लीज़ गिव देम योर अटेंशन एंड थोड़ा-सा एप्रिसिएशन विल टेक देम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। सो या, Hmm. And दैट्स be प्रीटी मच। kind, yeah, be kind to, I mean, yeah, though be kind to everybody, but I think especially be kind to artists. That I complete या, any creative person for that matter, ट्रू, because when somebody is putting in their creative energy now they're putting a heart, like a part of their body to it. So I think एग्ज़ैक्टली, yeah. So thanks so much, Aditya, and on that note we are ending this podcast right here. So for the listeners, stay happy, stay blessed, and most importantly stay grateful. I'll see you another one. Bye.